Now, I think you have that experiment in that vibration measurement, machine vibrations, model analysis, and noise measurement. As per your subject, dynamics of machinery, DOM, you have studied the theoretical analysis of that vibration measurement. I think you have that all formulas, complementary and particular solutions, and then logarithmic decrements, and we have done that many experiment in our DOM lab also. But this is the one experiment is required for your future, for your industry life. In fact, every industry, especially the automobile industry, mechanical industry, is doing this analysis. That is called the vibration measurement, and that is called the model analysis. What is the meaning of the model analysis? You try to understand. Vibration measurement topic is very important as far as the industry is concerned. When you go to that any sort of industry, you know what is the meaning of the vibration measurement. Okay, can I tell you what is the meaning of the vibration measurement? What do we want to measure it in vibrations? First, I want to just say you one thing. Measurement of the temperature means we have to use the thermometer and we have to find out that temperature of this room, and it cold and hot. This is, we know that this is called the temperature measurement sort of thing. What do you mean by the vibration measurement? I think you heard some of the topics, some of the term, frequency, amplitude, okay, peak of that vibration, time period of that vibrations. So what do you mean by the vibration measurement? What do you want to measure it? क्या समझते हो आप? वाइब्रेशन मेजरमेंट मतलब क्या समझते हो? आपने ग्राफ देखा होगा ना? Have you seen that logarithmic decrement graph? Have you seen the sine wave graph also? Force, vibration, and all this thing. What do you mean by the vibration measurement? What is the vibration? Yeah, please. Displacement from initial conditions. Displacement from initial conditions. Okay, the maximum displacement you are talking about? Any displacement. So displacement of the initial condition. If it is in one spring and mass system, I just displace it and remove it. Okay, so it will vibrate. After some time, it will be decrementing. That is called the logarithmic decrement. आपने देखा होगा, it's a free vibration. Okay, so logarithmic decrement में आ जाएंगे. Displacement मतलब कौन सी displacement की बात कर रहे हैं? हम जो खींच रहे हैं, ये जितना नीचे तक खींचा, that is called the displacement. That is called the measurement of vibrations. Is it a vibration? He is saying that displacement. Is it a vibration measurement? गाड़ी में हमारा okay, और एक चीज बताओ, गाड़ी में बैठा हूँ, okay, मैं बोलता हूँ गाड़ी बहुत ज्यादा वाइब्रेट हो रही है, कम हो रही है. What do you mean? Frequency? Amplitude. Or amplitude? Amplitude? What do you mean by the amplitude? Maximum displacement from mean position. Okay, from mean position. So maximum displacement from the mean position is called that amplitude. Okay, so if the more and more amplitude, more and more vibration. Or what do you mean by the frequency? What is the meaning of the frequency then? Number of, I am not understand any theoretical definitions. What do you mean by the frequency? मैं ये कर रहा हूँ. Now I am just given this vibrations. Now what is the meaning of the amplitude and frequency of this? Can you please tell me? Time you are doing that in 1 second. In 1 second, that is called Frequency. that is called frequency. And what about the amplitude? This is the amplitude. This is the amplitude. The distance from this person to this person is called the amplitude. Yes. Okay. So it could be the more amplitude but the same frequency, or this is more frequency. Okay. What is the meaning of the free vibration and force vibration? Without external force, free vibration. So without external force, मुझे vibrate कर दो. कुछ नहीं करना है मुझे, वाइब्रेट कर दो. हाँ? What is the free vibration? Unbalanced continuous force. Unbalanced continuous force is the free vibration? No sir, force vibration. I am talking about free vibration. Without Giving no displacement. Initial displacement, but after that no displacement. That is called the free vibration? Or without external force is called the free vibration. But without external force, how it can be vibrate? I want one by one. Natural क्या बोला? Natural क्या बोला? Naturally vibrate होगा? नहीं होंगे कोई. मैं तो vibrate नहीं हो रहा हूँ फिलहाल. Due to internal forces मैं vibrate होता रहता हूँ. Continuously सोता हूँ, बैठता हूँ, vibrate होता रहता हूँ. Okay, and force vibration? Force vibration? Without,
Force is applied periodically, then that time was the vibration is called the force vibration. Okay. What is the natural frequency? These are the terms जितना भी मैंने पूछा, एक वाइब्रेशन मैकेनिकल इंजीनियर को ये बहुत अच्छा से जानना जरूरी है. आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो, पेपर में मार्क ले आओ, नो मीनिंग. अगर ये बेसिक आप ठीक ठाक नहीं समझ जाते हो, डेफिनेशन का कोई मतलब नहीं. दैट इज ओनली टू राइट इन योर नोट्स, राइट डाउन द definition of amplitude, frequency and time period and all these things. Okay, what is the natural frequency? Quick. Frequency at which any body oscillates in free vibration. In free vibration. In free vibration. That is called the natural frequency. And force vibration में कौन सा frequency होता है? Okay. So what is that? What is that force vibration you are talking about? Force vibration frequency? Force frequency is the frequency of that force vibration. What is the force frequency? Frequency of the force that we are applying. Frequency of the force that we are applied, that is called the force frequency. And then body is also vibrating in that frequency. In case of force, he is saying something. Is it correct? He is saying that we are applying the force. क्योंकि force vibration का definition आप बता रहे हो, continuously you have to apply the force. तो जितने frequency में मैं force apply कर रहा हूँ, वही उसकी vibration हो रही है. Is it correct? Is it correct definition? Okay. So what I am talking about, that free vibration, force vibration, amplitude, frequency. And also you are telling something, the damped and undamped. What is the meaning of the damped? And what is the undamped? No damping? Any example of the vibration of undamped? Pendulum? Undamped? बंद नहीं होगा कभी भी? So any example of the undamped? Practically not possible. Theoretically is only possible. Okay, but damped, it will be you are applying some damping forces on that. Okay, अगर आप स्पेस में जाके पेंडुलम को जस्ट आप उसको एक बार डिस्प्लेसमेंट देके छोड़ दो तो वो जिंदगी भर चलते रहेंगे. Okay, because there is no resistance in that cases. But in Earth surface, it's not possible. All there is an air resistance, gravity, and all this thing is coming according to that. So there is no undamped in that. Normally, theoretically, is possible in the Earth surface. Okay. Damped is possible. Damping मतलब क्या होता है actually? Vibration होता क्या actually? So basically, what is that vibration in fact? Vibration is an advantage thing, or every time it's a disadvantage? Both. Any example of that advantages? Huh? Guitar is that one advantage बोल रहा हूँ. Anything else? Okay, ठीक है. So I think I touched all that point which is required to known by any mechanical engineer. That is frequency, amplitude, undamped vibration, free vibration, force vibration. Also, I think there is an 3 zeta value. What is the zeta? Zeta is damping factor. Okay, it will be C by Cc. I think the formula you know, and we know that there is 3 conditions for that one: under damped, over damped, critically damped. So this is basically the vibration. Vibration जो मैं पूछ रहा था, it's basically the energy. Vibration is the energy. Okay, whatever energy you are given, it stored that energy and again release it. Store it, release it. Undamped होंगे, अगर आप स्पेस में लेके जाओगे उसको, तो वो कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि damped होगा नहीं. एक बार वो स्टोर करेगा, फिर रिलीज करेगा, फिर स्टोर कर लेगा. Okay, so it will actually the basically energy. And जब आप damped करते हो, तो damping में वो एनर्जी को absorb कर लेता है. Damper is absorbing that energy. Okay, तो धीरे धीरे एनर्जी लॉस होते होते वो डैम्प हो जाता है. That's why it is coming the logarithmic decrement. एक झटके में कभी भी कोई काम नहीं होता है, धीरे धीरे काम होता है. So it's a losses the energy. Every cycle it losses the energy. That is called the damp type of the vibrations. Okay, so basically it will be that the 3 ग्राफ जो आपको दिख रहा है, एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ, और you can say it's a velocity, acceleration, all graph are the same nature in fact. Okay, it will be same nature in fact. पॉइंट ऊपर जा रही है तो यहाँ पे आ रही है, पॉइंट जब नीचे जाएंगे यहाँ पे आएंगे, and continuously it will be moving. It presents force type of the vibrations. It is a force type of the vibrations. These are the some of the example of the useful vibrations and the harmful vibrations. Okay, so you can see it, all that vibrator जो हम rock को तोड़ते हैं, rocking hammer जिसको हम बोलते हैं, this is a useful. That's why we are using the vibrations for that, breaking that one. Ultrasonic cleaning is that one of the operations जहाँ पे हमें उसको vibrate करते and then clean करते. Okay, vibration tracer. Destruction to many places है. The major drawback of that vibrations is in the machines. Any machines, आप कार में भी vibration नहीं चाहते हो, कहीं पे भी vibration नहीं चाहते हो. That's a drawback. That's why it's very important to study the vibration analysis. Okay. These are the term जो मैं term के बारे में बात किया. जब measurement की बात करते हो तो कुछ term आपको additionally जानना बहुत जरूरी है. Okay. One, I think this is called the amplitude. Okay. Mean से जो भी आप बोल रहे थे, that's called the amplitude.
देन द टाइम पीरियड क्या होगा आपका, एक पीक से अगर दूसरी पीक की डिस्टेंस हम मेजर करते हैं, दैट्स कॉल्ड द टाइम पीरियड. 1 by टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. 1 by टाइम पीरियड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी. ओके, ऑलराइट. Then 2-3 terms are required for the vibration measurement is concerned. One is called, these are the terms, peak amplitude. Peak amplitude होता क्या है? Mean to this distance is called the peak amplitude. Okay, that is called the peak amplitude. Mean to the distance is called the peak amplitude. There's another term is also used which is called the peak to peak. Okay, peak to peak is the negative to positive. It's a mod value. Okay, so distance between the maximum negative, maximum positive is called the peak to peak. Okay, that's called the peak to peak distance in this case. The third one is called the RMS. What is the RMS? What is that actually? What is that actually? RMS. RMS बेसिकली क्या होता है, देखो वाइब्रेशन में अगर आप देखोगे ना साइनसोइडल कर्व, तो देखो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है. ओके, सो अगर ऐड करोगे ना डायरेक्टली आप साइन कन्वेंशन को लेके, इट विल बी जीरो, राइट. लेकिन एक्चुअली इट इज एन एनर्जी. सो रूट मीन स्क्वायर में हम क्या करते हैं, वी आर फर्स्ट स्क्वायरिंग ऑल दिस थिंग. जब स्क्वायर कर लेते तो नेगेटिव वाला टर्म भी पॉजिटिव हो जाता. ओके, सो एवरी टर्म इनको भी मैंने पॉजिटिव कर लिया, एंड रूट मीन स्क्वायर का बेसिकली ऐसा ही होता है उसको, एवरीथिंग ऑन दैट अबव द जीरो लाइन. तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा था, उस ग्राफ को भी हम कन्वर्ट करके पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, एंड ऑल एरिया इज अबव द लाइन. And then average out of this area is called the root mean square, under root of x1 square plus x2 square plus x3 square divided by the n. That is called the root mean square. तो सारे के सारे एरिया पहले पॉजिटिव किया जाता है, and then average out किया जाता है, that's called the root mean square. Normally in vibration measurement we are taking the root mean square value. Okay, peak to peak value भी नहीं लेते and peak value भी नहीं लेते, we are taking the average out value which is called by the root mean square. Average ऐसा निकालने जाओगे तो it's coming zero, क्योंकि जितनी पॉजिटिव उतनी नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, इट्स कमिंग जीरो. सो ऑलवेज वी आर फाइंडिंग आउट द रूट मीन स्क्वायर एवरेजिंग वैल्यू. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द वाइब्रेशन इज कंसर्न. आई थिंक आपने अभी हमने बोला हुआ है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 by t. ओके, सो कैन आई राइट डाउन ft इक्वल टू 1? ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. टाइम पीरियड बढ़ेंगे, टाइम पीरियड मतलब कौन सा है, दो पीक के बीच में डिस्टेंस. टाइम पीरियड बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएंगे. टाइम पीरियड कम होंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. सो मोर टाइम पीरियड लेस फ्रीक्वेंसी, लेस टाइम पीरियड मोर फ्रीक्वेंसी. आई थिंक इस स्लाइड में मैंने वही लिख के दिखाया यहाँ. ओके, इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड काफी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, कम हो जाएंगे. इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड बहुत कम है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा. सो आई जस्ट गिव यू दैट वन एग्जांपल ऑफ दैट वन यूजिंग दैट लैब व्यू. Okay, now I just developed one LabVIEW coding in this case. It's a very simple coding to understand that amplitude and frequency का मतलब क्या होता है. Okay, आपको यहाँ पे दो ग्राफ दिख रही है. एक ग्राफ दिख रहा है आपका टाइम डोमेन, एक ग्राफ दिख रहा है आपको स्पेक्ट्रम डोमेन, दैट इज कॉल्ड दैट एफएफटी डोमेन. यही आपको समझना बहुत जरूरी है. आज की क्लास में मैंने वही आपको बताऊंगा जो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट एफएफटी. And it's a very difficult concept of the FFT. So try to understand properly the FFT का मीनिंग क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है. No one is studying the time domain. जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं ना, वो एक भी चीजें इंडस्ट्री में नॉर्मली लगेंगे नहीं आपको जाके. आपको जो कुछ करना होगा वो FFT डोमेन एनालिसिस आपको करना बहुत जरूरी है. So meaning of FFT, try to understand this. But first I just want to explain you what the meaning of the frequency and amplitude. So मैंने यहाँ पे देखो जीरो फ्रीक्वेंसी एंड जीरो एम्पलीट्यूड रखा है. ये बार मेरा एम्पलीट्यूड का बार है, ये फ्रीक्वेंसी का बार आपको दिखाया है. सर इसको आप 10 तक करो, approximately 10. Okay, it's all right. Now nothing is happened. Okay, the reason is I am given that amplitude is zero. Frequency तो दे दिया, लेकिन amplitude यहाँ पे जीरो है. Amplitude इसको 5 तक लेके जाना. Now we are getting some graph here. Okay, now what is this graph shows? This distance is called the phi. That's called the amplitude. This distance is called the phi, which is called the amplitude. What is the time? What is the frequency? Frequency is the time period. का रेसिप्रोकल कर लो आप, ऑटोमेटिकली गेट द फ्रीक्वेंसी इन दिस केसेस. सो फ्रीक्वेंसी आई एम गेटिंग हियर द 10 एंड दिस टाइम डोमेन ग्राफ आई एम कन्वर्टेड टू दैट एफएफटी डोमेन ग्राफ. नीचे का ग्राफ जो आपको दिख रहा है वो एफएफटी डोमेन ग्राफ है. एफएफटी डोमेन ग्राफ में ये जो डिस्टेंस होती है दैट्स कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी, एंड यहां पे क्या होता है आपका एम्पलीट्यूड होता है. तो फ्रीक्वेंसी मैंने कितना दिया, लगभग 10 के आसपास दिया, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितना हो रहा है देखो 10.74 के आसपास ही आ गया. एंड उस टाइम का जो पीक है इट इज अगेन कमिंग 4 पॉइंट समथिंग. तो जो मैंने एम्पलीट्यूड दे रहा हूं वही फ्रीक्वेंसी हमको फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाके दिखाई दे रहा है. इज इट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड का क्या रिलेशन है वो बताने के लिए, अगर टाइम पीरियड में ज्यादा करूं तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका कम हो जाएगी.
और बेसिकली हम यहां पे क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे। फ्रीक्वेंसी ज्यादा करेंगे तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, कम होते होते जाएंगे। जितनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे ये डिस्टेंस उतने कम होते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी अगर कम करोगे तो टाइम पीरियड आपका बढ़ते जाएंगे। सर अब बढ़ाते रहो। मैं जस्ट चेक इट, कितना है अभी 74। जस्ट चेक द डिस्टेंस बिटवीन टू पीक। ओके, जितनी फ्रीक्वेंसी में बढ़ा रहा हूं ऑटोमेटिकली वो कम होते होते जा रहा है। ओके, इज इट ऑल राइट? सो अगेन गो बैक टू द 10। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द एम्पलीट्यूड? मैं फ्रीक्वेंसी वैसा ही रख रहा हूं बट एम्पलीट्यूड को भी बढ़ाते जाऊंगा। क्या बढ़ेगा आपका? वर्टिकल डिस्टेंस बढ़ते जाएगा। जस्ट इंक्रीज इट। अब वहां पे स्केल देखो, स्केल चेंज हो रही है, देखो 10। ओके, नाउ इट विल बी 15, 20। सो स्केल चेंज होते होते जाएंगे। वहां पे डायनेमिक स्केल वैल्यू है तो स्केल चेंज होते होते वहां पे जाएंगे। सो ऑटोमेटिकली एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होगा? डिस्टेंस, ये बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? टाइम पीरियड बढ़ती है। टाइम पीरियड बढ़ती है। इज इट क्लियर? ओके, इस ग्राफ में आपको समझ में आ गया? फ्रीक्वेंसी ग्राफ में आपने एक चीज को शायद ध्यान में नहीं रखा होगा, जब मैं यहां पे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता हूं तो ये ग्राफ क्या कर रहा है, यहां पे शिफ्ट कर, ये ग्राफ क्या कर रहा है, यहां पे शिफ्ट कर रहा है। सर अगेन यू इंक्रीज टू द 90। देखो अब ये धीरे 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 शिफ्ट हो जाएगा एंड इट इज कमिंग टू द 90। ठीक है, ओके। नाउ एक पीक क्यू, एक पीक यहां पे क्यू दिखाई दे रहा है। मैं कमिंग टू द पॉइंट ऑफ द इफेक्ट, धीरे धीरे लेके जाऊंगा मैं इफेक्ट की तरफ। समझ लो ठीक ठाक उसको, अदरवाइज बहुत मुश्किल काम है। इफेक्ट हमें समझने लग गया अभी तक कम से कम 10-15 साल। ओके, सो ये ठीक से समझने का कोशिश करो जो मीनिंग ऑफ द इफेक्टिव, राइट? ना अब यहां पे देखो एक पीक यहां पे क्यों दिखाई दे रही है? कैन यू टेल मी द व्हाई वन पीक इन दैट इफेक्टिव ग्राफ? व्हाई वन पीक इन दैट इफेक्टिव ग्राफ? आप जितना भी कम ज्यादा कर रहे हो एक ही पीक, लेकिन उसको इधर उधर शिफ्ट हो रही। व्हाई वन पीक? नॉर्मली इफेक्टिव ग्राफ अगर आपने कहीं पे देखा होगा इट्स मेनी पीक्स ऑन दैट, बट हियर इज एन ओनली वन पीक, क्योंकि इट इज एन ओनली वन साइन वेव having the frequency equal to 90 or something. Okay, so it shows you that only one peak here, right? But if you combine number of the sine wave, then naturally आपका क्या हो जाएगा ना, नंबर ऑफ पीक दिखाई देंगे आपको, क्योंकि हर एक साइन वेव का एक अलग अलग फ्रीक्वेंसी रहते जाएंगे एंड उसके लिए आपको अलग अलग ग्राफ दिखाई देंगे। I'm coming to that point and that is called the effective. Actually this is not the effective, this is the spectrum graph. This is a spectrum graph. Is it clear? Okay, so are you understand the concept of the amplitude and frequency properly? Next, the type of vibrations. फ्री वाइब्रेशन से एक बार देके हमें छोड़ना है, बट इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। जब बोल रहे थे ना एक्सटर्नल फोर्स, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, बट द इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। इनिशियल नहीं दोगे तो वाइब्रेट नहीं होती कोई भी चीज, अपने आप वाइब्रेट नहीं होती। एक बार वाइब्रेट करके छोड़ दो, उस टाइम जो फ्रीक्वेंसी होता है दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। करेक्टली आपने बोला, दैट इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ओके, क्योंकि एक बार देके छोड़ना मतलब ही वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी पर रन करेगी। देन द फोर्स वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन मतलब हमें रिपीटेटिव फोर्स देना पड़ेगा, बार बार उसको हैमरिंग करनी पड़ेगी, बार बार साइन वेव पर कैसे भी आप दे सकते हो बट वाइब्रेशन देनी पड़ेगी। नॉर्मली कार में हमें कौन सी वाइब्रेशन मिलती है? फोर्स, ऑल द टाइम इट विल बी वाइब्रेटिंग। ओके, तो रोड से हमें ऑल द टाइम वाइब्रेशन आ जाती है, दैट्स कॉल्ड द फोर्स वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड अलग हो सकता है, फ्रीक्वेंसी अलग हो सकता है, लेकिन वाइब्रेशन हमें कंटिन्यूअसली मिलते जाएगा, देन दैट इज कॉल्ड द फोर्स वाइब्रेशन, राइट? ओके, नेक्स्ट अनडैम्प्ड डैम्प्ड। आई थिंक यू नो दैट अनडैम्प्ड डैम्प्ड का मतलब आप समझते हो, आगे लेना है आई थिंक। ओके, आई थिंक यहां से समझ में आएगा, एक बार क्लिक करना बीच में। दिस इज द अनडैम्प्ड वाइब्रेशन। ऑलरेडी मेरे ख्याल से पाटिल सर ने आपको सिमुलिंग सबको बता दिया क्या? क्या सर सिमुलिंग सबको बता दिया? सबको बता दिया सर। सिमुलिंग ऑलरेडी आपको सर ने बताया। यू हैव आल्सो वन असाइनमेंट, अगर नहीं बताया होगा तो ठीक से करो। सिमुलिंग इज द वन ऑफ द टूल इन मैटलैब में आता है, जहां पे ब्लॉकिंग में कोडिंग होता है, जो कि बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल में आप अपना प्रोजेक्ट में भी लगा सकते हो। मेनी स्टूडेंट ऑन आवर कॉलेज एक्चुअली यूजिंग द सिमुलिंग फॉर द प्रोजेक्ट। ओके, अर्लियर ऑल्सो this same graph you can generate in the Simulink properly, you can generate in the Simulink also. Now this is the under damp। under damp का मतलब zeta का क्या होगा? less than 1। it's called the logarithmic decrement। एक बार ऊपर जाएंगे धीरे 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 लेस होते होते जाएंगे। ओके, now we just checked it, कम होगी। now this is called the damping। ओके, ये जो एनर्जी ऑब्जर्व किसने किया? डैम्पर ने किया। अगर डैम्पर नहीं लगा कर रखोगे तो थियोरेटिकली कोई इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करेगा, वो जिंदगी भर चलना चाहिए। Okay, so this is called that damping, which is the under damp. But under damp कब होंगे? The condition to be satisfied, that is when C by CC equal to less than 1 1 होंगे तो under damp होना जरूरी है। मतलब कोई भी चीज को आप वाइब्रेट कर दो एंड डैम्पिंग ऐसी कंडीशन में रखो, वो धीरे 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 वाइब्रेट होते होते नॉलिफाई हो जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द अंडर डैम्प। नेक्स्ट, क्रिटिकली डैम्प। क्रिटिकली डैम्प में देखो क्या होता है, वाइब्रेट तो एक बार मैं करके छोड़ रहा हूं, लेकिन कंडीशन इज इट इज इक्वल टू 1। ओके, जीटा इज इक्वल टू 1। सो क्या हो जाएगा ना, तुरंत नीचे आएंगे एंड नलिफाई हो जाएगा। ओके, क्रिटिकली डैम्प में नॉर्मली नलिफाई होता नहीं, देयर इज ऑलवेज सम रेसिडुअल वैल्यूज यहां पे जाकर रह जाता है। लेकिन आप ये टाइम पीरियड को देखना, जहां पे वो 0 के आसपास आ गया, दैट इज इन 2। ओके, सो 2 सेकंड में वो डैम्प हो गया एंड उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रेट हो गया डायरेक्ट। कोई इस तरह का लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट काम क्रिटिकल डैम्पिंग में दिखाई नहीं देती है। नाउ कैन यू रन इट?
ना फर्स्ट थिंग देखो, ये वैल्यू यहां पे है, तो जब रन किया तब नीचे आएंगे, लेकिन इट्स अगेन नॉट रीचिंग बैक टू दिस पोजीशन, वो कहीं पे तो थोड़ा सा डिस्टेंस में रह जाएगा यहां पे आके। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द क्रिटिकल डैम्पिंग। अंडर डैम्प को देखोगे तो जहां चालू हुआ था वहीं पे जाके खत्म होगा वो, लेकिन यहां पे ऑलवेज सम रेसिडुअल वैल्यू यहां पे आके रह जाएगा, मतलब जहां से वाइब्रेशन चालू हुआ था वापस उस जगह में आता नहीं। इट्स एन ऑलवेज गैप बिटवीन दिस टू। ओके, नेक्स्ट वन इज दैट ओवर डैम्प्ड। ये 2 को याद रखना क्रिटिकल डैम्पिंग में। ओवर डैम्प में देखो ये 4 में जाके खत्म होता है। दैट्स अ माइनर डिफरेंस बिटवीन द ओवर डैम्प क्रिटिकल डैम्प। जल्दी खत्म नहीं होती है, जल्दी डैम्प नहीं करते, थोड़ा सा टाइम लेता है डैम्प होने के लिए। अब इसको वाइब्रेट करो, ठीक है। सो इनिशियली इट विल बी डैम्प्ड एंड देन अगेन इट विल कमिंग बैक, बट हियर इट इज अ नियरली जीरो हो जाता है। क्रिटिकल डैम्प में नियरली जीरो होता नहीं है। ओके, ना मुझे बताओ कि आउट ऑफ दिस 3 व्हिच वन इज मोर प्रेफरेबल? अंडर डैम्प, क्रिटिकली डैम्प, ओवर डैम्प? अंडर डैम्प इज एन इट इज प्रेफरेबल। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू नलिफाई इट। आपकी कार में व्हिच वन इज प्रेफरेबल? क्रिटिकल? Critical? Yes or no? Anyone is saying it's not a critical damping? सभी को लगता है क्रिटिकल? Yes or no? Yes, sir. क्रिटिकल। ओके, ना देखो आपको नीचे से ऊपर से गिराया गया है, ठीक है, एक कुशन के ऊपर आपको गिराया गया, आप नीचे जंप करते हो और तुरंत नहीं रुकते, थोड़ी देर बाद आप रुकते हो, ठीक है। इट्स डैम्पिंग जो होता है वो नॉर्मली आपको एक झटके में रुकाएगा नहीं। स्प्रिंग के ऊपर कभी भी जंप करोगे आप तो थोड़ी देर बाद आप रुकोगे, ठीक है, लेकिन एक हार्ड बाउंड के ऊपर आपका अगर फेंका जाए तो आप वहीं पे आके सडन स्टॉप होते, ठीक है। आपको जर्क दिया गया और पकड़ लिया गया बीच में, ओके, इसका मतलब क्या होगा? इमीडिएटली स्टॉप कर दिया गया। इस टाइम एक शॉक लगता है आपके ऊपर, और एक छोड़ दिया एक स्प्रिंग के ऊपर, एक कुशन के ऊपर, धीरे 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 आप स्टॉप होते। इस टाइम शॉक बहुत कम लगती है। Okay, so never to design any automobile for the over damped and critical damp. It is always for the under damped system. It is all the time is the under damped system. But उसमें भी कितनी जल्दी खत्म किया जाए वही, नहीं तो कंटिन्यूसली वो वाइब्रेट होते रहते। ओके, बट स्टिल वाइब्रेट होना भी अच्छा है, शॉक नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा जर्क बढ़ता है, बहुत उल्टा जर्क बढ़ जाता है। आप सीट के ऊपर भी बैठे रहोगे तो जैसे ही ऊपर की तरफ जर्क मारेगा आप सीट से ऊपर की तरफ चले जाओगे। ओके, so that is not a comfortable thing. Comfortable is always the under damped system.